Baptiste is very famous for sports, right? आप लोग में से कितने लोग हैं जो गेम्स को पसंद करते हैं? Anyone plays football? Yes. Football? Yes. How many footballers here? Okay. Any other games? Badminton. Cricket? Good. Okay. So, to win a game, what should we do? एक खेल में हम खेलते वक्त में हम जीतने के लिए क्या करना पड़ता है? कोई बड़ा सवाल है क्या? पहले रूल जानना पड़ेगा. Okay, rules. Thank you, Raja sir. Anyone else? खेलने के लिए योग्य होना पड़ेगा. Okay, qualify. Very big answer. Simple answer बताओ. Practice. Concentrate. Concentrate. Oh my God, you're all big scholars. Simple answer. साधारण जो जवाब बोलने के लिए कोशिश कीजिए. Play well. अच्छे से खेलना है. Right? Yes. Know the rules, practice and everything. ये सब भी करेक्ट है. जो रूल जानना है, प्रैक्टिस करना, ये भी सही है. To win a game, play well. अच्छे से हम जीतने के लिए अच्छे से खेलना पड़ता है. Know the rules, pray according to the rules. वो जो रूल्स को भी जानना चाहिए. Practice so much so that in the game you will do well. प्रैक्टिस भी अच्छे से करना है ताकि हम अच्छे से खेल कर हम खेल को जीत पाए. Brother said qualify. क्वालिफाई भी होना चाहिए. Many things, right? बहुत सारे बात है. Okay. So that is about a game. वो तो एक खेल के बारे में बात हो रहा है. Now let me ask a similar, simple another question. मैं ऐसी एक अभी जैसा सवाल पूछा वैसा एक सवाल पूछता हूँ. इस वजह से एक साधारण सवाल पूछता हूँ. What should we do to win in life? हमारा जीवन में जीतने के लिए हम क्या करना पड़ता है? Understand my question? सवाल समझ में है? To win in our life, what should we do? हमारा जीवन में इस जीवन में अच्छे से जीतने के लिए हम क्या करना पड़ता है? Then you might ask me, तब आप लोग मुझे ऐसा सवाल पूछेंगे होगा. what is this life? जीवन मतलब क्या है? इस life का जीत मतलब जीवन में खेल क्या होता है? लाइफ ही पता नहीं है, जीत किसको पता है? तुमको जीवन के बारे में नहीं पता, जीवन का खेल कैसे पता होगा? Right. So we'll try to see from the word of God what is life and how to live it well. तो हम परमेश्वर के वचन से ये देखते हैं जीवन मतलब क्या है, उस जीवन को किस प्रकार से हम अच्छे से जी पाएंगे. Just like a player, is expected to play well in the game. जैसा एक खिलाड़ी खेल में अच्छा से खेलने के लिए कोशिश करता है. Winning is his purpose. उनका उद्देश्य जीतना. And we are all born into this world and God has given us a life. हम सब लोग इस संसार में जन्म लिया है. हम जीने के लिए जन्म लिया. And to live that life well is a very primary purpose of ours. So उस जीवन में जीतना हमारा जीवन का मुख्य मकसद है. So we'll see from a psalm what is life and how to live it well. So हम एक भजन में देखते हैं जीवन मतलब क्या है, उसको किस प्रकार से जीना चाहिए. You may not even have to turn to a particular portion in the Bible because what I'm going to share it from you already know by heart. मैं इतना आप लोग खोलकर देखने का जरूरत नहीं. आप लोग मैं जो बोलना चाहता हूँ आप लोग सब जानते हैं इसका. What could it be? कौन सा भजन अच्छे से आप लोग जानने वाला भजन? Sunday school में memory verses, competition, first prize, second prize, third prize. Psalm 1. Romans 1 भजन 2. संहिता पहली Romans 12. Sorry? Romans 12 1 2. Psalm. Okay, we'll look at Psalms 1. भजन संहिता पहले अध्याय को हम देखते हैं. Before we go there, वहाँ जाने से पहले do you know, is there anyone here who writes songs?
आप लोग के बीच में कोई है जो गीत लिख सकता है, गाना लिखता है, कंपोज करता है, लिखता है? Other right. और Once I got curious and I tried to check in Google. एक बार मैं इसके बारे में बहुत उत्सुक था जानने के लिए, इसलिए मैं गूगल में सर्च कर रहा था। How many songs are written in a day? एक दिन में कितना गाना लिखता है? New songs. New songs. नया नया गाना कितना लिख रहा है? And Google told me that for every 1 hour, 2,000 new songs come into the internet. हर एक घंटा में 1,000 नया नया गाना इंटरनेट में आ रहा है। That means in one day, how many songs? इसका मतलब एक दिन में कितना गाना आ रहा है? 24,000. God, in a month? एक महीना में? No, abacus student. 24,000 into 30, 24,000, 2,40,000. 72, 48, भैया आप abacus class to गए? 72. 7,20,000. yeah. Good. 7,20,000 in 1 month. New songs come onto the internet. एक महीना इंटरनेट में 7,20,000 गाना आ रहा है। Great, isn't it? सच में कितनी बड़ी बात है। Why do people write so many songs? क्यों लोग इतना सारे गाना लिखता है? Because songs are, they come from within and they are very powerful. गाना जो है उन लोगों के अंदर से आता है, वो बहुत सामर्थ्य शक्तिशाली होता है। Right? Yes or no? ऐसा है कि What you tell normally in normal sentences and what you tell in a song, the kind of emotion a song can bring is very different. ये मुंह से एक शब्द बोलना गाना का जैसा एक बात को प्रस्तुत करने में बहुत सारे फर्क है। Yes or no? When you guys are singing, you'll be closing your eyes, you'll be lost and you'll be like, oh my God, I want to keep singing all my life. जब हम गीत गाते रहता है, सुनते रहता है, आँख बंद करके उसमें हम ध्यान में चला जाते हैं, ऐसा लगता है कि मैं इसमें खो जाऊंगा। ऐसा होता है। That is actually spoiling so much of the church today. आपको पता है ये जो बात है बहुत सारे कलीसिया को नाश भी कर रहा है। Oh my God, I didn't think brother will speak all these things. Because in praise and worship you feel all those things, but sometimes when you walk out of the church, you're the same old person. कभी कभी आराधना में बहुत सारे गीत गाते गाते अपना आप कम खो जाता है, लेकिन जब कलीसिया से बाहर जाते जाते सब कुछ भूल जाता है। Right? Yes or no? It happens. If what we sing to God does not sink into our life, then it's a waste. जो हम गीत गाते हैं वो गाना हमारे जीवन में कोई मिलजुल नहीं होता है, वो कभी कभी ऐसा होता है हमारे जीवन। You could sing in the sweetest of voice, हम एकदम मीठा एक गाना आवाज से हम गा सकते हैं, the deepest of words, एक गहरा अर्थ मीनिंग से बात गाना गाते the हैं, most melodious tune ever, बहुत साधारण और धीरे से हम गाते हैं। but that truth, if it doesn't go into your life and if you don't live that out, praise and worship doesn't really take you much far. सो वो जो गाना का अर्थ जो आपका हृदय के अंदर में अगर नहीं जाता, उस गाना का कोई मतलब हमारे जीवन में नहीं दे रहा। So in the Bible there are a lot of songs, बाइबल में बहुत सारे गाना है। and actually one of the first songs is in the book of Genesis. इसमें सबसे पहले गाना है जो उत्पत्ति पुस्तक में है। But then again, the book of Songs, it's a whole book dedicated to songs. सो यहाँ पे भजन संहिता जो किताब है, ये किताब पूरा गाना से भरा हुआ है। And here is one man whose name we do not know. यहाँ पे एक व्यक्ति है जिसका नाम हमको इतना जानकारी नहीं है। He sings a song about life. इस व्यक्ति इंसान का जीवन का बारे में गीत गा रहा है। Usually songs are sung for God, right? यहाँ पे गाना जो है परमेश्वर के बारे में गाता है, Yes or no? है कि नहीं? Songs are sung praising and exalting God. गाना ऐसा गाना आता है परमेश्वर को ऊंचा करना, परमेश्वर का आधार करना। You are great. आप महान है, I kneel before you. I bow before मैं you. आपका आगे घुटने टेकता हूँ, आपका आगे गिर जाता हूँ। Oh, you are a great God and all of that. Usually songs are sung to God.
तो इसलिए गाना ऐसा गाते हैं कि परमेश्वर के लिए गाना गाता है। But here is the psalmist who sings about life. यहाँ पे एक भजनकार है जो जीवन के बारे में गीत गा रहा है। I find it very interesting that in a whole book dedicated for songs, this song about life is placed as the first psalm. सो मैं अचंभ हुआ क्योंकि बहुत सारे गाना है, ये पूरा किताब गाना से भर गया, लेकिन लाइफ के बारे में, जीवन के बारे में गाने वाला गाना सबसे पहले रखा है। It's interesting, right? More than praising, the first psalm is actually teaching. देखिए बहुत सारे ऐसा स्तुति आराधना का गाना है और सिखाने वाला गाना भी है, But the first psalm is a psalm of teaching. लेकिन इस पहले जो गाना है सिखाने वाला, उपदेश देने वाला गाना है। I think the scholars who arranged these psalms, मैं ऐसा सोच रहा हूँ जो बाइबल का स्कॉलर्स जो है, जो जिसने भजन को अच्छा से वो जो अरेंज किया है, they would have done it because a life well lived, there is no better praise than that. वो लोग ये बात को जानता है, अच्छा से जीवन प्रभु के लिए जीना, इससे बढ़कर स्तुति और कुछ नहीं है, ऐसा करके ये भजन को रखा है। Right? Yes or no? Instead of just singing with the mouth, probably the psalmist thinks, just let your life be a song of praise to God. सो आप मुंह से सिर्फ गाने का जगह में सारा जीवन को प्रभु के लिए जीना, ये प्रभु को महिमा देता है, प्रभु को स्तुति देता है। And in songs, understanding emotion is very important, right? सो गाना में जो गहराई बात को समझना बहुत मुख्य बात है, Yes or no? है कि नहीं? If you have a very happy song, but you sing it like this, बहुत खुशी की बात है, लेकिन आप लोग बहुत दुख का साथ गा रहा है, how it will be? ये कैसा होता है? It will be very funny and it does not serve the purpose at all. नहीं, ये जो बहुत क्या बोलता है, एक मजाक जैसा होता है, इसमें कोई अर्थ नहीं होता। In the same way, if we try to understand the emotion of this psalmist, अगर वैसे ही हम इस भजन का जो गहरा अर्थ अगर हम समझने से, he starts this psalm saying, how blessed is the man. सो ये जो भजन ऐसा वो शुरू करता है कि कितना क्या ही धन्य है। Did you get the emotion of the song? ये गाना का जो How blessed is the one. ये गाना का जो इमोशन को समझो, ऐसा लिखा कि क्या ही धन्य है। You look at a car. आप कार की ओर देखिए, क्या गाड़ी? कैसा गाना है। I have a favorite car, Ford Endeavor. मेरा भी एक फेवरेट कार है, फोर्ड जैसा। Whenever I see that, what a car. मैं कार की ओर देखता I violate one of the 10 commandments. मैं 10 आज्ञा में एक आज्ञा को मैं क्या बोलते हैं, उल्लंघन करता हूँ। Do not covet what belongs to your neighbor. दूसरों को देख के आशा मत कर। Like that, the psalmist is talking about a life and he says, oh, how blessed is that person's life. सो यहाँ पे भजनकार भी ऐसा शुरू कर रहा है कि क्या ही धन्य है वह पुरुष जो है। And who is that person and how is his life? We should ask the question. सो देन अभी हम लोग ये पूछेंगे वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति कैसा जी रहा है। He describes it. वो बात को इसमें लिख रहा है। He tells 3 things. वहाँ पे 3 बात को बता रहा Who है। does not follow the advice of the wicked, जो दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता, who does not stand in the pathway with sinners, ना पापियों का मार्ग में खड़ा होता, or sit in the assembly of the scoffers. और ना ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। He says a life which is not tainted with sin is a blessed life. तो इसमें क्या कह रहा है कि एक जीवन जो पाप का साथ मिक्स नहीं हुआ है, वो जीवन धन्य है। Oh my God. We thought life means big car, nice house, big pocket, nice health and all that, right? हम लोग सोच रहे हैं अच्छा जीवन मतलब अच्छा कार, बिल्डिंग, पर्स भर के पैसा और अच्छा कार्स करके हम समझ रहे हैं। But this man is saying a life which does not have sin is a blessed life. लेकिन ये भजनकार का अर्थ में पाप का मतलब ऐसा है जिसका
जीवन पाप का साथ शामिल नहीं होता है वो धन्य है। This blessed person described here, यहाँ पे जो धन्य व्यक्ति जिसका बारे में लिखा है, he does not follow the advice of the wicked. ये व्यक्ति दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता। That means there is wickedness around him. उसका अर्थ यह है कि उनके चारों ओर दुष्ट लोग हैं And the wicked are giving him the advice. और दुष्ट लोग उनको सलाह भी दे रहा The है world around him is telling him so many things. और सारे दुनिया के लोग उसको बहुत सारे सलाह दे रहा But है, he is not following in that path. लेकिन उन लोगों का सोच विचारों के अनुसार नहीं चलता है। Second one, or he is not standing in the pathway with sinners. दूसरी बात है और ना पापियों का मार्ग में खड़ा होता, He cannot stand there in the pathway of sinners सो वो वहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता जहाँ पापियों से भरा है, or sit in the assembly of scoffers. और ना ठड्डा करने वालों के मंडली में बैठता है। So, the first point this psalmist gives about a blessed person is this blessed person, though he has wickedness, sin, and scoffing around him, he does not go along with that. सो यहाँ पे भजनकार एक ऐसा व्यक्ति का बारे में बोल रहे, धन्य व्यक्ति जो दुष्टों का युक्ति पर नहीं चलता, पापियों का मार्ग में खड़ा नहीं होता या ठड्डा करने वालों के साथ बैठता है। Then we should scratch our head. हाँ, हम थोड़ा सा सर पे ऐसा खुजली करना पड़ता है। How is this possible? हम इसे कैसा संभव है ऐसा The करना? world is so tempting. सारा संसार हमको परीक्षा कर रहा है, Sin is, kind of pulling us. पाप हमको खींच रहा है। He gives the answer. यहाँ पे जवाब दे रहा है। Verse 2. दूसरा आयत, He finds pleasure in obeying the Lord's commands. दूसरा आयत में लिखा है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। Oh my goodness. This guy is mad. इस व्यक्ति कितनी अद्भुत व्यक्ति है। First thing, God's commandments are there. पहली बात है परमेश्वर का आज्ञाओं है। This man not only reads them, इस व्यक्ति उस आज्ञा को केवल पढ़ता नहीं है, but he meditates on them. इस व्यक्ति उसमें मनन करता है। He not only meditates on them, केवल मनन भी नहीं करता है, he takes pleasure in obeying those commandments. इस आज्ञा को पालन करने में प्रसन्न होता है। No wonder the psalmist is calling him blessed. हाँ, वो भजनकार इसको धन्य व्यक्ति करके कहने में कोई यहाँ पे आश्चर्य की बात नहीं है। Avoiding sin, पाप को दूर रखना, how is he able to avoid the sin? कैसा पाप को दूर रख सकता है? Knowing the commands of the Lord परमेश्वर का वचन को जानना, and meditating on those commands of the Lord, परमेश्वर का वचन को मनन करना, and his desires have become so pure that his pleasures come from obeying the word of God. सो इनका जो इच्छा लालसा जो है वो बहुत शुद्ध है, इसलिए इस वचन को पालन करने में इनको बहुत प्रसन्न होता है। कैसा होता है ये सब बात? For us, reading itself is a big headache. परमेश्वर का वचन पढ़ना हमारे लिए बहुत सर दर्द की बात है। Sometimes Sunday morning we are like, and run to the church, right? सुबह सुबह इतवार का दिन में उठता है, पूरा उसमें जितना भी धूल है उसको पूरा मार के हम बाइबल लेके जाता है। In my church, I sometimes sit near the audio mixer. It's a big console. हमारा चर्च में एक बड़ा ये जो मिक्सर होता है जो साउंड सिस्टम का, वहाँ पे बैठता हूँ मैं। And I was seeing one Bible there for days together. It was one of my youth members. वहाँ पे मैंने एक बाइबल देखता हूँ, हमेशा वही रहता है, हमारे यूथ में एक लड़का का है वो। Then I asked him, I met him after 1 week. I asked, where is your Bible? एक हफ्ता के बाद मैं उनको मिला और पूछा आपका बाइबल कहाँ है? He understood my question. उसको मेरा सवाल का पीछे अर्थ भी उनको समझ में आया। He said, I have 2 Bibles. उसने अच्छा से जवाब दिया, मेरा 2 बाइबल है। For us, sometimes opening the Bible itself is a big task. हमारे लिए बाइबल को खोलना भी बहुत मुश्किल की काम है। But there is no other way to a blessed life than through your Bible. आपको पता है बाइबल परमेश्वर का वचन को छोड़कर ऐसा कोई धन्य जीवन नहीं है इस संसार में बिना परमेश्वर का वचन। I'll give you an example. मैं आप लोग को एक उदाहरण देता हूँ।
if a person has to live, अगर एक व्यक्ति जीना चाहेंगे what he should do? वो क्या करना पड़ता है? You will all say eat mustard leaf and pork. आप सब कहेंगे सरसों के पत्ता के साथ पोर्क खाना है, Chicken, चिकन खाना है, papad, और पापड़ खाना है, white rice. फ्राइड राइस। Sorry, that is what we ate. आप कीजिए, अभी हम लोग वही कहे थे। Not that answer. Can a person live without breathing like this? क्या इंसान बिना श्वास लेके जी सकेंगे? Hey, मजाक मत करो. It's possible. She's doubting. It is possible. Without breathing, you can live. बिना श्वास लेके जी सकता है। What will you call me if I say that? मैं अगर ऐसा बोलूंगा तो आप लोग मुझे क्या कहेंगे? Two things. दो बात कहेंगे। भैया मजाक कर रहा है, भैया तो कुछ मजा कर रहा होगा। नहीं तो भैया को हॉस्पिटल लेके जाए. Yes or no? Yes. हाँ? Same way, वैसा ही है। you can never live your life the way it should be lived without discipline. वैसा ही है बिना परमेश्वर का वचन आप जैसा जीना चाहता है वैसा जीना है तो इस वचन का बिना आप जी नहीं पाएंगे। As impossible as living without air, breathing air is, so impossible also is having a good life without the Bible. जैसा बिना श्वास का एक इंसान जैसा जी नहीं सकता है उससे भी बढ़कर बिना परमेश्वर का वचन एक व्यक्ति एक अच्छा सही रास्ता में जी नहीं सकता है। Can I say much more, a little more than that? इससे और बढ़कर कुछ बात कहूँ, Today, if you have not taken this word to your life, अगर ये वचन को आपका जीवन में नहीं लेता तो it is the same as today you did not live. वैसा ये ऐसा है कि आज आप इस जीवन को नहीं बिताया। Understood? Did you understand what I'm saying? आप लोग समझ Today, रहे हैं? if you did not read the Bible and live according to that and learn something today is a dead day in your this life. अगर इस बाइबल का आप लोग नहीं पढ़ा है, अगर जीवन बिताया वो जीवन एक मरा हुआ जीवन का जैसा है। जैसा आप जीना चाहता है वैसा आप जी नहीं पाएंगे। So if you say 60 years is the average life, अगर आप कहेंगे 60 साल अगर एक इंसान जी सकता है 60 into 356, 16 to 356, in that 60 into 356, one day is dead. तो एक 60 साल के जीवन में 365 का दिन में एक दिन आप गया, आप मर गया। I don't know today how old you are. पता नहीं आप लोग के जीवन में आज आप लोग कितना उम्र का है। Maybe, what is the average age here? 16, 17? यहाँ पे लोग कितना साल तक रहता है? यहाँ पे 70, 75. 70, 75. Okay, yeah, age group. बच्चा का यहाँ का 17 years, 18 years, your age? यहाँ का सबसे छोटा कितने उम्र का है और बड़ा सबसे वही उसी में समझना है। 15 से लेके 35 तक था। 15 to 35। Good. Some people are shy to tell their age. Just kidding. So, in your so far life, इस जीवन में how many days did you wake up after you grew up in your mind? How many days did you wake up and read from this word and say, okay, this thing today I will try to obey. ऐसा कितना दिन आपका जीवन में ऐसा हुआ कि सुबह का वक्त में आप उठकर बाइबल लेके पढ़ के हाँ ये जो वचन है मेरा जीवन में मैं पालन करने के लिए कोशिश करता हूँ। Or you open the Bible and the Bible is like saying something and something in your mind says, oh, you are not living like that. And you thought to yourself, oh, I should not live like that. And did you correct yourself? अगर आप वचन पढ़ते समय में बाइबल आपको जीवन में कुछ गलत दिखाया तो इसको देख के आप ऐसा कभी पहचान लिया, हाँ मेरा जीवन में ऐसा जी नहीं पा रहा, अभी से मैं ऐसा नहीं जीऊंगा करके अपना आपका क्या कुछ पश्चाताप हुआ? If that habit is not there, अगर ऐसा आदत आपका जीवन में नहीं है तो it is sad to say that we are just existing, not living. उसका विषय में मैं एक दुख का साथ ऐसा कहूँगा
कि आप जस्ट अस्तित्व में तो है, लेकिन आप सच में जी नहीं पा रहे। You understand? I'll give you an example. इसका मैं अर्थ में आपको बताऊं। A person who might be dying in a hospital. एक व्यक्ति है जो हॉस्पिटल में मरने He पर could be or she could be just lying like that. वो व्यक्ति ऐसा हॉस्पिटल में जस्ट ऐसा बेड में ऐसा सोया दिखाई दे रहा है। There is a difference between that person and a person who is waking up, doing things, being fruitful and doing many other things. सो बिस्तर में ऐसा पड़ा हुआ व्यक्ति और सुबह अच्छे से उठकर अपना अपना काम करके एकदम एक्टिव का साथ जीने वाला व्यक्ति, इन दोनों के बीच में फर्क है। So there is a big, not big, a huge difference between existing and living. सो अस्तित्व को जीने का बीच में बहुत सारे फर्क है। If you really want to live, अगर आप सच में जीना चाहेंगे, if you want to have life, अगर आपके जीवन में परमेश्वर का जो जीवन होना चाहिए, तो I beg you, there is no other way than this. मैं आपसे विनती करता हूँ और मेरा विनती ये है कि इसका बिना, इस बाइबल का बिना आप जी नहीं पाओगे। Because through this book, God pours life into you. क्योंकि इस पुस्तक के द्वारा परमेश्वर उनका जीवन आपका अंदर में उंडेलता है। Like I need energy for, I need to eat for energy. जैसा मेरा जीवन में जो शक्ति के लिए मैं खाना पड़ता है, Just in that way, to live life well or live life the way it has to be lived, I need to eat from this. सो ऐसा ही मेरा जीवन में अगर सच में मैं जीना चाहेंगे या जिस प्रकार से मैं जीना चाहेगा, अगर वैसा मैं जीना है तो इस वचन का मैं हर रोज एक खाना का तरह लेना पड़ेगा। And this, gives me food only if I, have a discipline to sit, open, read and apply it to my life. जब मैं इसका वचन के साथ बैठता हूँ और अच्छे से पढ़कर इसका अर्थ को मेरे जीवन में मैं लागू करता हूँ, Until we make that habit, our life in its real sense will not go forward. जब तक हम वैसा नहीं कर पाएंगे तब तक हमारा जीवन असली में जी नहीं पा रहे हैं हम लोग। If you are not having any desire to study this book, अगर आपका इस वचन को पढ़ने का कोई इंटरेस्ट अगर आपका अंदर में नहीं है, then what should we do? हम लोग क्या कर सकते हैं? What should we do? हम लोग क्या करना है? What should we do? You said something? If we don't have any desire for this book, what could be the reason? इस वचन पढ़ने के लिए अगर हमारे अंदर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तो कारण क्या हो सकता है? Sinner, wicked, scoffer. क्या हम पापी है ना, दुष्ट है ना, या ठट्टा करने वाला? Really? Yes. सच में हाँ, Maybe we are not saved. हम उद्धार नहीं पाया होगा, Or maybe the way we were saved was not right. हम उद्धार पाया हुआ जो तरीका सही नहीं हो सकता है। Maybe you're thinking I'm a child of God. अब मैं परमेश्वर का, You're thinking that you're a child of God, but maybe you're not. आप परमेश्वर का संतान करके सोच रहा होगा, लेकिन नहीं। Let us take a real life example. मैं एक सही सच्चा एक जीवन को मैं उदाहरण बताऊंगा। You saw one small dog and a puppy there, वहाँ पे एक छोटी सी कुत्ता है। right? When the small puppy sees the mother, what it will do? एक छोटा जो कुत्ता का बच्चा जो है, उसका माँ को देखने से क्या करती है? Wag its tail, उसका पूंछ को हिलाती है, run to the mother, माँ के पास दौड़ती है, drink the milk, दूध पीती है, play with the mother, माँ का साथ खेलती है, right? है कि नहीं? So if you are a child of God, what you should do? आप अगर परमेश्वर का संतान है तो आप क्या करोगे? Run to God. हम दौड़ते हैं कहाँ पे? परमेश्वर के पास। Feel the pleasure in relating with God. परमेश्वर के साथ जो रिश्ता में हम और खुशी होने के लिए कोशिश करते हैं। Feed from God. परमेश्वर से हमको पालन पोषण मिलता है, Spend time with God. परमेश्वर के साथ समय बिताता है। But if that is not coming from inside, what could be the problem? अंदर से अगर ऐसा इच्छा आपको नहीं हो रहा है तो कारण क्या हो सकता है? Do you really know God?
क्या आप सच में परमेश्वर के बारे में जानता है? Are you really saved? आप सच में परमेश्वर का उद्धार पाया है? Is your heart really changed? आपका हृदय सच में बदल गया है? Have you actually met your Creator? आप सच में इस सृष्टिकर्ता को मुलाकात हुआ है? The Bible says बाइबल कहता a है person who is born again ये व्यक्ति जो दूसरा जन्म लिया है has a new heart उनको एक नया एक हृदय होता है, and he has new interests. उनको एक नया एक रुचिकर बात होता है। And one of those interests is this, उसमें से एक बात है ये बाइबल। not just reading it, इसको केवल पढ़ना नहीं, but obeying it. इसको आज्ञाकारी बनना। The Bible says the new Christians, they had so much energy for God. बाइबल कहता है कि मसीही जो दूसरा जन्म लेता है परमेश्वर के लिए वो पागल तरह हो जाता है। But these days, in the lives of people we call as Christians, we don't see any of that. लेकिन आजकल बहुत सारे लोग जो अपना आपको मसीही कहता है लेकिन उसका गुणों में वो सारी बात को देख नहीं पाता। So I think it's a question or a problem of how we are saved maybe. तो ये हमारा सवाल या समस्या हो सकता है, हम किस प्रकार से उद्धार पाया है। If you have met your Creator, अगर आपका सृष्टिकर्ता को सच में मुलाकात हुआ तो that you realize that this God made you. अगर आप सच में जान लिया कि इस परमेश्वर ने मुझे सृष्टि किया है, That He gave you life. वो आपको जीवन दिया है, Before He gave you His life, He gave you your life. तो परमेश्वर उनका जीवन देने से पहले Before He gave you His life, He gave you your life. आप परमेश्वर उनका जीवन देने से पहले आपको जन्म दिया, आपको जीवन दिया है। If God did not give you your life, परमेश्वर अगर आपको जीवन नहीं देता today I would not be looking at you. मैं आपको तरफ और देख नहीं सकता, Because you are not existing. क्योंकि आप अस्तित्व नहीं होगा। If people ask me what is one of the things that you celebrate in life, अगर कोई मुझे पूछेंगे आपका जीवन में ऐसा कौन सा चीज है जो आप उसको पर्व जैसा मनाते हो, I tell them this. मैं उनको ये बताता हूँ Brother, I could have been non-existent. मैं अस्तित्व में नहीं होने से अच्छा है। No. I would have been non-existent, but God had me in His mind and made me exist. నన్ను పుట్టించాడు, నాకు ఒక జీవితాన్ని ఇచ్చాడు, దానికి నేను కృతజ్ఞుడు. मैं जो अस्तित्व में नहीं था ऐसा व्यक्ति को जीवन दिया, मुझे अस्तित्व में लाया। So God's biggest gift to you is that you were non-existent, but today you are existent. You are a living being. पहले परमेश्वर हमको दिया हुआ इनाम में सबसे बड़ा इनाम ये है, पहले हम अस्तित्व में नहीं थे, परमेश्वर हमको अस्तित्व में लाया, हमको अभी जीवन दिया, हम अभी जी रहा To be born through your parents, है। माँ बाप की तरफ से और से हम जन्म लिया, to grow in life, हम बढ़ रहा है, to meet people, हम लोगों को मिल रहा to है, eat, laugh, enjoy. हम खाता है पीता है, दूसरों से बहुत खुशी मनाता है। Oh, life is a blessing. God gave that to you and me. जीवन एक आशीषित की बात है, परमेश्वर आप और मुझे दिया। But its purpose is that we should know the one who gave it and not just live it without, living it for Him. लेकिन उस जीवन परमेश्वर हमको देने का मकसद ये है कि हम जीने का समय में जिसने हमको ये जीवन दिया उनको जानना है, किस लिए ये जीवन दिया है वो भी हम जानना चाहिए। Life cannot be lived without living for the one who actually gave that life. जीवन ऐसा है कि जिसने हमको जीवन दिया उनके लिए अगर नहीं जिया तो जीवन जिया जैसा नहीं है। Verse 3. तीसरा आयत देखिए, He is like a tree planted by flowing streams. It yields its fruit at the proper time and its leaves never fall off. He succeeds in everything he has done. वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों की किनार लगाया गया है और अपने ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। He's comparing the life of a blessed person to a life of a fruitful, never withering or drying tree. यहाँ पे भजन करने इस धन्य व्यक्ति का जीवन को लेके फल से भरा हुआ पेड़ का समान जो कभी मुरझाता नहीं
उसका साथ वो कंपेयर कर रहा है। Now, what is expected from a tree? The biggest thing expected from a tree. एक पेड़ से हम चाहने वाला चीज क्या हो सकता है? So, a blessed man is like that person who is living the full potential of his life. That's what probably Samik is saying. एक आशीषित के व्यक्ति ऐसा A blessed man is like a tree which is fruitful, means he is living life's full potential. एक ऐसा व्यक्ति है जो आशीषित पाया हुआ व्यक्ति, वो अच्छे से जीवन बिताने से एक फल से भरा हुआ पेड़ का जैसा वो समान है। So that person is living the life that God wanted him, and that's best. वो पर्सन का जीवन में, वो व्यक्ति का जीवन में परमेश्वर जैसा उनको जीने के लिए दिया वैसा वो जी रहा है। The last line of verse 3 is so interesting. तीसरा आयत का आखिरी लाइन बहुत ही रुचिकर बात है। He succeeds in everything he attempts. वो जो कुछ पुरुष करे वो सफल होता है। Oh my goodness. In every attempt he succeeds. How bold a statement it is. जो कुछ वो करता है वो सफल होता है, ऐसा स्टेटमेंट देना कितना हिम्मत की बात है। Is it possible? ये जो असंभव है ऐसा होना, How can we understand that? उसको हम कैसे समझ सकता है? A person who is going according to the word of God, एक व्यक्ति जो परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहा है, and he is attempting something. वो ऐसा कुछ काम किया है, Okay? Understanding now? सुनिएगा, He is going according to the word of God, वो परमेश्वर का वचन के अनुसार चल रहा है, attempting something. कुछ कर रहा है, Even if he fails, अगर वो विफल होने से भी it is still a success. वो भी उनके लिए सफल है। Understood? आपको समझ में आया? Did you understand or not? आपको समझ में आया कि नहीं? That success may not be like the success which the world gives. वो जो सफल ऐसा सफल नहीं है जैसा संसार देती है, But he attempted it because of the word of God. वो परमेश्वर का वचन के लिए वो उस काम को यत्न किया है। Maybe sometimes the desired outcome did not come, कभी कभी जो हम सोचा है, लालसा किया है, वो नहीं आ सकता है, but still he is successful लेकिन वो सफल होता है because his motivation was God's word and God's glory. क्योंकि उसका जो मोटिवेशन जो है परमेश्वर का महिमा के लिए, परमेश्वर का वचन के लिए। Or sometimes the desired outcome also may come. कभी कभी उनका जो इच्छा का जो मकसद भी बाहर आ जाता है। How is the life of the wicked? Verse 4. एक दुष्ट व्यक्ति का जीवन कैसा होता है? 4 पद में लिखा है। The blessed one is like the tree, एक धन्य व्यक्ति एक पेड़ का समान है, wicked one like the shaft. दुष्ट लोग जो है वो एक भूसी का समान है, Wind driven shaft. उनको पवन उड़ाई जाती है। Shaft that does not have any value. वो जो भूसी का कुछ उसको कीमती नहीं है, Shaft that does not have any weight. वो जो भूसी कुछ भारी भी नहीं होता है। Look at verse 5 and 6. 5 और 6 हम पढ़ते हैं। You're all so quiet, so I'm finishing. अब लोग बहुत चुपचाप बैठा है इसलिए मैं समाप्त कर रहा हूँ। You know, silence is in preaching. Silence has a meaning. प्रचार करते समय में चुपचाप बैठना भी एक अर्थ होता है। You know what? क्या है पता है? One, everybody is being pricked. चुपचाप रहने से एक अर्थ ऐसा है कि सबको परमेश्वर का वचन डांट रहा है। लेकिन ऐसा तो नहीं लग रहा है. There is second meaning. दूसरा भी एक अर्थ है। जल्दी बंद करो. Just kidding. You know, my time is up actually. That's why I'm going to close. Verse 5 and 6. 5 और 6 पढ़ेंगे। For this reason, the wicked cannot withstand judgment, इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर न रह सकेंगे, nor sinners can join the assembly of the godly. और न पापी धर्मियों का मंडली में ठहरता है। Verse 6. Certainly the Lord guards the way of the godly, but the way of the wicked ends in destruction. क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्ट का मार्ग नाश हो जाए। Let me tell this as bluntly as I can.
इस बात को जैसा मैं बोलना चाहे वैसे मैं बोलूंगा. The ending of your life is going to be how you chose the beginning today. आपका जीवन का जो अंत जो है वो अंत आज आप जैसा जीवन बिता रहे हैं वो जीवन निर्णय करेगा आपका अंत कैसा The होगा. choice you make today and every morning जो आपका जीवन में हर सुबह हर रोज जैसा आप जीने के लिए चाहता है it is already writing your end. ये जो जीवन आपका अंत को लिख रहा है. अब अंत कैसा होने वाला ऑलरेडी लिख रहा है. People say भगवान ने already लिख दिया. कुछ लोग कहता है परमेश्वर ने ऑलरेडी लिख दिया है. नहीं लिखा. God has given you a choice परमेश्वर आपको ये मौका दिया है to obey, उसको आज्ञाकारी बनो. to make your path of life according to His word. आपका जो मार्ग को इस वचन के अनुसार बनाओ. He has given you your greatest gift, a free will. इसने एक बड़ी जो एक इनाम जीवन प्रभु ने दिया है. You have the right to choose, and God won't say no to what you choose. आपको जो भी करना है आपका मर्जी से उसको चुनकर कर रहा है. So please choose your life each morning by opening this book. इसलिए कृपया करके आपका जीवन कैसा होना है आप चुन लो ये वचन के अनुसार. Otherwise, the end is going to be destruction. लेकिन वो जो आपका अंत जो है नाश होने वाला है. You know, when something is, decreasing in its value, little by little, you cannot see the difference, very evidently. आपको पता है एक चीज का जो कीमती दिन ब दिन में अगर घटते जा रहा है आपको पता नहीं चलता है उसका जो वैल्यू कैसा होता है. Am I making sense? If your life is slowly going bad and bad and bad, maybe you are not able to notice it. आपका जीवन हर रोज खराब होते जा रहा है उसका अर्थ आप आपका जीवन के बारे में इतना ध्यान नहीं दे रहा है. So, but one day you will know, and that should not be the ending day. लेकिन एक दिन आपको पता चलेगा. लेकिन वो जो दिन जो है अंत दिन वो जो नाश होने वाला दिन ना हो. Beloved, life is so precious. प्रियो जीवन बहुत बहुमूल्य है. It's way beyond your job, your studies, your family, and all those things. Life has much higher definition and value. जीवन जो है आपका पढ़ाई से आपका परिवार से आपका सोच विचार से कहीं गुण अधिक है. All these things are the small parts of the life. ये सारी बात आप जो कर रहा है ये जीवन में छोटी छोटी काम है. But your real life is how you are relating to the God who made you. असली जीवन ये है आप कैसा परमेश्वर जिसने आपको बनाया उनका साथ आप रिश्ता बनाता है. If a tree can bear fruit only in a certain way, अगर एक पेड़ एक रीति से एक रीति से वो जैसा फल देती है there's only one way for a tree to give fruit. एक ही तरीका से वो फल देती There's है. only one way for you to have a blessed life. आपका भी एक ही तरीका है आशीष पाने के To लिए walk according to this. उस वचन के अनुसार चलने के लिए. For the good ending, for a successful and blessed ending, this is the key. एक अच्छा अंत के लिए एक सफल जीवन के लिए ये वचन सही से हमको मदद करता है. If you did not yet meet your Creator, अगर आप अभी तक आपका सृष्टिकर्ता को मुलाकात नहीं हुआ तो the one who made this world, इस सारा संसार को जो बनाया है the one who is responsible for your lungs breathing in and out, आपका लंग्स काम करने के लिए जो जिम्मेवारी ले रहा है the one who put blood in your veins, जो आपका नस में खून डाल रहा है. if your mind does not still bow in worship of your Maker, आपका अगर जो मन उस सृष्टिकर्ता का आगे अगर गिरने के लिए तैयार नहीं है if your heart does not long towards your Maker, आपका हृदय उस सृष्टिकर्ता के लिए वो इच्छुक नहीं करता है that Maker came down and died for you on the cross. ऐसा होने से भी आपका जो सृष्टिकर्ता आपके लिए स्वर्ग से उतर के आया कलवरी क्रूस पर आपके लिए मरा. He paid for your and my sin. आपका और मेरा पाप के लिए वो जो
दाम चुकाया। He had so much love that being so great a God, he could humble himself to becoming a man and dying. वो इतना महान परमेश्वर होके भी उनको अपना आप को नम्र बनाया, इस संसार में आया, आप और मेरे लिए खलवरी क्रूस पर प्राण दिया है। And he shed his blood for you and me. आपके लिए प्रभु उनका लहू बहाया है। Oh, the world cannot write an imaginative story like this because nobody will believe it even if it's written. ये कोई भी इंसान ऐसा जो स्टोरी को लिख नहीं सकता है, लिखने से कोई विश्वास भी नहीं कर सकता। Your maker's love for you is that man. आपका सृष्टिकर्ता का जो प्रेम आपके लिए इतना पागलपन है। Have you not yet accepted him? क्या आप इस परमेश्वर का अभी तक स्वीकार नहीं किया है? If you have not, today is the time. अगर अभी तक आप प्रभु इस परमेश्वर को हृदय नहीं दिया तो अभी ये जो अच्छी जो मौका है परमेश्वर आपको दे रहा है। Believe in your heart. हृदय में विश्वास कीजिए, You are my maker. परमेश्वर आप मेरा सृष्टिकर्ता है। I lived in sin. मैं पाप में जीवन I बिताया, inherited sin. मैं पाप में जीवन बिताया, But you died on the cross for लेकिन my आप मेरे लिए कलवरी क्रूस पर प्राण दिया। sin. You are a just and righteous God. आप न्यायी और धर्मी परमेश्वर हैं। You should have punished me. आप मेरे पाप का वजह से हमको मुझे दंड देना चाहिए था, But you are a loving God. लेकिन आप प्रेमी परमेश्वर। Instead, you punished yourself for what I did. आप मेरा पाप के लिए मुझे दंड देने का जगह में आपको He दंड died दिया for है। my punishment. You punished yourself. आप मुझे देने वाला जो दंड को अपना ऊपर में ले लिया। You died on the cross for me. आप मेरे लिए क्रूस पर मरा, And you rose again victoriously. आप एक जीत के साथ तीसरा दिन जी उठा। Oh, I want to worship you because you are my maker and I want you to be my savior. मैं आपको आराधना करना चाहता है क्योंकि आप मेरा सृष्टिकर्ता है, मैं आपका हाथ का रचना हूँ। If there is anyone here like that and would want to believe in Jesus Christ, यहाँ पे अगर ऐसा कोई लोग अभी तक प्रभु को हृदय नहीं दिया, आज प्रभु यीशु को उद्धारकर्ता रूप में ग्रहण करना चाहता है, if you want to walk with Christ, आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ चलना चाहता you है, can always come talk. आप जब भी आपको मौका मिलता है कि हमसे बात कर सकते हैं। Thank you for your very, very, very patient listening. आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि बहुत सहन के साथ आप लोग बैठ के वचन सुना है। I hope I kept you all awake. मैं विश्वास करता हूँ आप लोगों को जागते रहने के लिए मैं कोशिश किया। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। सब लोग इधर